ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کچھ سماجی مسائل اور ان کا حل، ان کے اسباب اور ان کے سدباب۔ آج ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ صدر سومرو کمیونٹی جنرل سیکریٹری ٹمبر مارکیٹ جناب سجاد سومرو صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سجاد صاحب؟ خیریت سے؟ آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کے ہماری دوسری مہمان، کافی پروگرامز پروڈیوس کر چکی ہیں، جنرل اینکر پرسن ہے محترمہ کوثر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کرم ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر ڈریم ورلڈ ریزورٹ ہوٹل جناب عبد الجبار راٹھور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جبار صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ تھینک یو آپ ویری کو مچ ہمارے فار پروگرام میں کالنگ۔ بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہے لغاری بوتیک کے روح رواں جناب فہیم لغاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں خوش آمدید اور آپ کی عمل کا شکریہ۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ملک کے ابھرتے ہوئے ثنا خواں سرمد علی خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سرمد، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مولا رنگ دے، مولا رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ ہے دعائیں بسم میم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے، ہے دعائیں بسم میم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا 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 رنگ دے، 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 مولا مزید برکت عطا فرمائے۔ سجاد سومرو صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ہمارا جیسے کہ موضوع ہے کہ معاشرتی مسائل اور ان کے سدباب، ان کے اسباب۔ تو آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بچی کا معاملہ جو ہے کافی اس وقت ایشو بنا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ آج کل جو ٹین ایجر میں جو بے راہ روی پھیل رہی ہے، تو اس کے کیا اسباب ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا سدباب کر سکتے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस बात से स्टार्ट करूंगा। मैंने एक ट्वीट देखी आज, उस पर लिखा था दुआ अपनी मौज में पूरी कौम सोग में। अल्लाह माफ़ करे। इस चीज़ को आप साइड में रख दें। आप ये बताएं कि उनके माँ बाप के ऊपर जो इस वक्त गुजर रही है, क्योंकि कोई एक बच्ची तो है नहीं, ये टोटल मिला के 3 बच्चियाँ हैं। बेशक देखें, माँ बाप की तरफ से ओरिजिनल जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, एज बताई गई है। एक आध को छोड़ के जो है ना वो बाकी अंडर एज है। एक तो हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब आप देखें कि ये किस चीज़ से इनकी दोस्ती हुई है। एक की पबजी के थ्रू हुई है, एक की लूडो स्टार के थ्रू हुई है। अब देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी नस के अंदर, नसों के अंदर जो ना ये चीज़ें जो है ना वो रच बस गई हैं। आप माँ बाप भी आखिर बेचारे 24 घंटे तो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रख के नहीं बैठेंगे। बेशक। तो अब जब हम जैसे बड़े, हम जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अगर 10 मिनट के लिए हमारा इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में समझे अब चैन ख़त्म हो जाता है, सुकून सा जो ना वो होता ही नहीं है बिल्कुल। तो फिर बच्चे तो फिर उनके आदी हो चुके हैं। जब हमारे यहाँ बच्चे पहले, हम अपने अगर बचपन की बात करें तो सिवारा पढ़ने चले जाते थे या दूसरे मामलात होते थे, लेकिन आजकल का जो बच्चा है, अगर 1.5 साल से बच्चे की आप ग्रोथ देखें तो तब से उसको मोबाइल फोन देके कार्टून लगा के देते हैं और वो तब खाना खाता है। अदरवाइज इसके अलावा रोता रहता नहीं। मुझे मैं अपने बच्चे की अगर बात कर लूँ, जी बिल्कुल, देखिए हम सबकी बहनें हैं। ये काम बच्चियों ने गलत किया है, माँ बाप के जो है वो अगेंस्ट जाके इन्होंने जिस तरीके से शादी की है वो उनकी फैमिली का मैटर है। खुदारा आप देखें, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी जो है ना वो भरपा हुई है, और मतलब ऐसी वो बातें करें, क्या उनके घर वालों तक ये मैसेजेस नहीं पहुंचते होंगे? मुझे तो आज मैंने उनके माँ बाप की, एक दुआ बच्ची के माँ बाप की मैंने वो देखी है, लाइव न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके चेहरे के आप तासरात देखिए। मतलब मीडिया वाले ऐसी गलत उनसे सवाल कर रहे थे कि मैं यहाँ पर ये सवाल दोहरा नहीं सकता हूँ। आपको पता है एक मसाला चाहिए होता है, तो 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, तो इसी तरीके से हर मीडिया वाले के डिफरेंट रोल होता है। तो बस अल्लाह पाक जो है वो उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जितनी हमारी बच्चियाँ हैं वो अपनी बच्चियों का जो ना वो ध्यान करें। खुदारा वो कम से कम अपनी बच्चियों को चेक करें कि वो किसी गलत राह पे तो नहीं चल रही हैं। अगर उनकी एज हो चुकी है और अगर उनको कोई पसंद है तो आप बिठा के समझाएं। अगर नहीं समझती और आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी उस सामने वाले बंदे के साथ अच्छी गुजरेगी, उसका बैकग्राउंड चेक करा कि आप अपनी बच्चियों को उनके साथ शादी करा दें। कम से कम इज्जत तो महफूज रहेंगी। क्योंकि इस ज़माने में मैं आपको जाते एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक ऐसी औरत बचपन में हमने देखा कि एक ने किसी ने भाग के शादी की थी। आप यकीन करें, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, उसकी बच्ची ने भी आफ्टर 20 साल के बाद भाग के शादी की है। तो ये जो मामला है ना, फिर ये नस्लों तक जो ना पीछा करते हैं, सुई के पीछे डोरी आ रही होती है ना। क्या बात तो ये सारी चीजें बस अल्लाह पाक इन सबको जो अपने ज़ुबान में रखे। कौसर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक छोटी सी बात कहूँगी कि आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है कि इंग्लिश तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन दीनी तालीम पे इतना जोर नहीं है। बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे माँ बाप का यहाँ पे ये कसूर है कि वो कहते हैं कि ठीक है बाद में देखेंगे, इसको दीन को थोड़ा सा कम टाइम दे दो, लेकिन इंग्लिश पूरी आनी चाहिए। ओ लेवल में दाखिला करा दिया, मतलब बच्चे बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, तरबियत पे कोई जोर ही नहीं है। बच्चों ने मोबाइल अगर टच लिया हुआ है और आईफोन उनके हाथ में, तो उनकी इज्जत बढ़ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे है माँ बाप को थोड़ा सा कसूर ये कि वो बच्चे अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा उनको फोकियत किस पे देंगे। थोड़ा सा हर माँ बाप की बात नहीं कर रही, उन माँ बाप की बात कर रही हूँ जो इसको बहुत अच्छा समझते हैं। जो एक गैदरिंग हो रही है, बच्चे लड़के लड़कियाँ बहुत मज़े से जा रहे हैं, पार्टीज हो रही है, इन चीज़ों को कोई बुराई नहीं समझी जाती। हमारे दौर में तो हम शॉपिंग भी करने जाते थे तो हम पहले देखते थे, अम्मी का मुंह देखते थे, अम्मी इजाज़त देंगी कि नहीं देंगी पता नहीं, फिर घर में ही आ जाती थी चीज़ें, हम जाते ही नहीं थे। अब तो बच्चियाँ बता के निकलती हैं, अम्मी हम जा रहे हैं, देखे कब आते हैं। तो थोड़ा सा माँ बाप को स्टार्ट से ही सख्ती रखनी चाहिए, और इंग्लिश तालीम से ज़्यादा दीनी तालीम की तरफ अगर ये आ जाएँ, कुरान पढ़ेंगे, तर्जुमा तफसीर समझेंगे, तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको खुद पता चलेगा कि दीन क्या बोलता है। दीन इजाजत देता है कि किसी गैर लड़के के साथ इस तरह भाग जाओ आप। बिल्कुल भी नहीं। आपके पेरेंट्स जिन्होंने इतने से आपको इतना किया है, वो किस को सवाल का जवाब दे रहे हैं, और एक को देखकर दूसरे को हिम्मत मिल रही है, तीसरे को हिम्मत मिल रही है। सोशल मीडिया को तो चाहिए कि इसको नेगेटिव इतना ज्यादा इसको करें कि असर हो माँ बाप को समझ में। माँ बाप को ब्लेम इस तरह नहीं करे कि वो अपने आप में शर्मिंदा होकर वो कहें ठीक है अच्छा है भाग गई तो जानी छूटी। ये बोलना तो बड़ा आसान होता है जी, मोबाइल ला के दे दिया बच्चों को इसलिए बिगड़ गए, लेकिन हम अपने गिरबान में नहीं झांक के देखते हम क्या कर रहे हैं। देखिए मोबाइल ला के दिया है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि गलत वेबसाइट खोल के उसमें लग गए। आप थोड़ा सा नजर भी रखे बच्चों पे, थोड़ा सा रखे। बहुत से तरीके, ये कहना कि नहीं हम नजर कितनी नजर रखेंगे, नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में 4वीं 5वीं के जो बच्चे मोबाइल के बगैर जीना ही हराम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने रह नहीं सकते उसके बगैर। सही है। अब्दुल जब्बार राठौर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी सबसे पहली तो बात यह है कि ये किसी भी स्पेसिफिक जो डिस्कशन हो रही है उस पर हमें जाना नहीं चाहिए, जनरली जाना चाहिए। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा भी
کہ اس میں انہوں نے کوثر نے بھی کہا کہ موبائل اور باقی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا یوز جو ہے نا وہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ابھی میرے پاس بھی یہ جو موبائل ہے یہ 2-4-5 دن کے لیے بند ہو گیا تھا. تو میرے برابر میں میرے دوست بیٹھے ہوئے لگا رہی, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے. تو ہم بالکل محتاج ہوتے ہیں, ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس موبائل ایک دن نہ ہو نا تو ایسا لگتا ہے دنیا ادھوری ہو گئی. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں, اس کے یوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور لیکن بہت خراب چیزیں یہ ہیں کہ اگر اس میں آپ کوئی قرآن شریف دیکھ رہے ہو, کوئی آیت دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, سپارہ سن رہے ہو, تو اس میں بھی کوئی ایڈ آ جاتا ہے بیچ میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب بچے یہ یوز کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم آپ بھی نہیں دیکھ پاتے. اب ہماری ایج ایسی ہو گئی نا, تو لیکن بچہ اس چیز میں گھستا ہے. تو یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں, اس کو سسٹم مینٹین کر رہے ہیں, ورلڈ وائڈ کر رہے ہیں, یا جان بوجھ کے اس کو پھیلایا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہے, یہ سب سے بڑی برائی کی جڑ یہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایک زمانہ ہوتا تھا 30-40 سال پہلے کی بات ہے, جب ہمارے پیرنٹس ہوا کرتے تھے, تو اگر 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں 1 سال کے بچے سے لے کے 70 سال 80 سال تک کے نانا دادا بھی ہوا کرتے تھے, تو سب آپس میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے, نانی دادی پھوپھی چاچی سب باتیں کر رہے ہوتے. اور آج اگر 10 لوگ بیٹھتے ہیں تو 10 کے 10 لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. بالکل تو محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ میڈیا جو ہے یہ ہمیں تباہی کی طرف لیتا جا رہا ہے. میں آپ کے میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں موبائل کے مس یوز کی طرف بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا تو سوشل, تو اس کو تھوڑا سا کیئر کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, بچوں کو اس پہ سمجھانا بھی چاہیے. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر دوسرے کے بچے کے پاس موبائل ہے تو ہمارے بچوں کے پاس نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ان کی ٹریننگ ایسی کرنی چاہیے, جیسے کوثر نے ابھی بتایا کہ دینی ماحول کی طرف جانا چاہیے, ہمیں نظر ضرور رکھنی چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. فہیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی بالکل یہی کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہی آج کل کی جنریشن کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے. سمرو بات کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, صحیح کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ماں باپ بچے کے اوپر نظر تو نہیں رکھیں گے. ظاہر سی بات ہے کام پہ جائیں گے, گھر میں بھی 10 کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں, جو سوشل میڈیا پہ چیزوں کو وائرل کرتے ہیں نا, اسٹیٹس لگا دیے, ڈیپیاں لگا دی, یوٹیوب پہ آپ دعا سرچ کریں, دیکھیں کہ آپ کو 2000 ویڈیوز آ جائیں گی. کیا وجہ ہے؟ صرف ویورشپ کے چکر میں اس لڑکی کی عزت, اس لڑکی کا فیوچر سب کچھ خراب اور برباد ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اس کی فیملی دیکھ رہی ہوگی, وہ خود دیکھ رہی ہوگی, اگر وہ کل کو واپس بھی آ جاتی ہے تو اس کی عزت کا کیا ہم نے کیا ہوا ہے. بالکل بالکل آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. اچھا ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ ہم موبائل کو روک نہیں سکتے نا, اس کے استعمال کو, لیکن اس کو پازیٹیو وے میں تو ہم کر سکتے ہیں. روک نہیں سکتے, پر اس کو کم سے کم اس حد تک ہم بچوں کو دیں جہاں تک ہم کنٹرول کر سکیں. ان کو بالکل فری ہینڈ دینا, سمجھیں کہ آپ خود اس چیز کو دعوت دے رہے ہو گھر میں. بالکل وجہ فرمایا آپ نے. کوثر صاحب آپ تشریف لائی ہمارے پروگرام میں, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول جناب حسان بن خورشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسان صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. پیش کرتا ہوں ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام.
सुभान अल्लाह, क्या बात है सामने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सज्जाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से आप सदर हैं सुमरो कम्युनिटी के, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो समाजी खिदमात हैं, उसके हवाले से। 12 आपके यहाँ पर चैनल पे आता रहता हूँ, अक्सर बात होती है, शहजाद सईदी के प्रोग्राम में भी आता रहता हूँ। सोशल एक्टिविटी में ये कि बस ये कि आप अपने लोगों की हेल्प किए जाएँ। आपके पास अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कम्युनिटी की, तो वैसे अगर नहीं भी है तो उसके बावजूद भी हर इंसान का ये हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है, अगर अल्लाह पाक ने आपको साहिब हैसियत रखा है तो आप जो है अपने तवज्जुह से भी, और आपके जो दोस्त यार भी होते हैं, जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम किए, तो मेरे पाकिस्तान से बाहर के और यहाँ के भी दोस्त थे, वो देखते हैं, फिर वो हमें फ़ोन भी करते हैं, बताते भी हैं कि यार कि रमज़ान आ रहा है, इसके लिए अगर आपको कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो तो हम आपको राशन के इतने बैग करवा दें। तो क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है ना वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई है, और कच्छियों में जो है ना हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ी है सुमरो। माशाल्लाह जी बिल्कुल। तो ये है कि ज़ाहिर है ये तो हर जगह पे यही हालात हैं, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में फिर आपको पता है कि हर आदमी सर्वाइव कर नहीं सकते। एवरेज अगर एक आदमी की 15,000 रुपये तनख्वाह है तो अपना जो है वो घर किराया भरेगा, या घर में राशन ग्रोसरी वगैरह डलवाएगा, या फिर वो बिजली का बिल भरेगा। तो इस तरीके से हम जो है वो वक्फतन फ़वक्फतन अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए करते रहते हैं। इसके अलावा भी आउट ऑफ कम्युनिटी में भी, सराउंडिंग में भी हमारे जो भी रिलेटिव वगैरह, सॉरी जो भी अपने लोग वगैरह हैं, इनकी भी हेल्प करते हैं। हिंदू कम्युनिटी में भी काफ़ी जो है वो हम एक्टिव रहते हैं करने के लिए। ज़ाहिर है हैज़ा मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़तह मक्का में जो ऐलान किया था, वो भी चीज़ लेते हुए हम जो ये चीज़ आगे ले चल रहे हैं। तो जब दूसरी कम्युनिटी हमसे इंस्पायर होगा तो हो सकता है कि वो हमारे किसी ऐसे अच्छे काम से ईमान ले और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ से करनी पड़ती हैं। बहुत अच्छी और मस्बत सोच है आपकी। फ़हीम भाई, आपकी जानिब आऊँगा। आप भी माशाल्लाह गरीबों में राशन तकसीम करते हैं, तो कुछ इस हवाले से बताएं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ और समाजी खिदमत। हर साल कर रहा हूँ, ये चौथा 5वां साल है। जब से पहले तो दुबई में था, यहाँ आया हूँ। बाकी सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, कहीं पे अगर रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी हम पहुँचते हैं। रमज़ान में राशन है माशाल्लाह। साथ ही मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को साथ लेके चलें, जहाँ जिसको ज़रूरत है कोशिश करते हैं कि उसको हेल्प आउट करें। माशाल्लाह। अच्छा, आप अपनी बुटीक का आगाज़ भी करने जा रहे हैं, इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। ईद से पहले था, पर थोड़ा सा डिले हो गया हालात की वजह से। इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद है और अगली ईद से पहले, तो इंशाल्लाह इसको एज सून एज पॉसिबल हो गई है। जी डिसाइड हो गई है। लकी वन में है, लकी वन में। अच्छा, लकी वन में। ठीक। अब्दुल जब्बार राठौर साहब, आपकी जानिब आता हूँ। माशाल्लाह से आप डायरेक्टर हैं ड्रीम वर्ल्ड के, तो इस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। और अभी मनोड़ा पे भी मैं देख रहा हूँ स्टैंडी लगी हुई माशाल्लाह से, कुछ इसके हवाले से बताना चाहें। जी माशाल्लाह, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट जो है तकरीबन 27 ईयर्स से ऑपरेशनल है माशाल्लाह। 144 एकड़ पे, और तकरीबन 280 प्लस उसमें एक्टिविटीज़ हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वाटर एक्टिविटीज़। वहाँ पे माशाल्लाह बड़ा फैमिली और सिक्योर्ड माहौल है, पूरी बाउंड्री है वहाँ पे माशाल्लाह। काफ़ी जगहों पे वहाँ हम मैरिज सेरेमनी भी, शादियाँ भी अरेंज करते हैं, और रेस्टोरेंट्स भी अंदर बने हुए हैं। और जो फैसिलिटी एक 5 स्टार में हो सकती है वो इंशाल्लाह उससे अच्छी हम ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में प्रोवाइड करते हैं। 85 शैलेज़ हैं हमारे पास, जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बुक ही रहती हैं। एज़ फार एज़ मनोड़ा इज़ कंसर्न, अभी हमने 2 मंथ्स बैक मनोड़ा पे भी ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की एक 13 रूम्स की एक बिल्डिंग बनाई है, जिसमें हमने सी को भी पूरा रोप से कवर किया है, जहाँ पे हमारे लाइफ गार्ड भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हमारी बोट भी है, बनाना बोट भी है, जेट स्की भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने वहाँ की हैं। और मैं समझता हूँ कि कोस्टल हाईवे जितने भी 1000 किलोमीटर पे जा रहा है, अगर उस पर आप जाएँ तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बिल्डिंग आपको किसी बीच पे नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप वाइस चेयरमैन भी है पाकिस्तान चैप्टर मेमन लीडरशिप फोरम के, इस हवाले से कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ एक्टिविटीज़? मेमन लीडरशिप फोरम में माशाल्लाह रहीम जानू हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट है, अख्तर आरफा चेयरमैन पाकिस्तान है, हमजा ताबानी सीनियर वाइस चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और 3 वाइस चेयरमैन और भी हैं। हमारा काम मेमन लीडरशिप फोरम का करना तो सब ने, जो मेमन कम्युनिटी में और भी कम्युनिटीज़ करती हैं, लोगों की हेल्प, लोगों की फलाह बहबूद उसके लिए होता है। लेकिन मेमन लीडरशिप फोरम का काम है कि हम जो यंग जनरेशन है हमारी, जो बिलो 50 है, क्योंकि बाज़ जगहों पे ऐसा है कि 60, 70, 80 एज के लोग वो लीडरशिप कर रहे हैं, तो अब उनसे मुसालियत करके हम सब से मिल के हम ला रहे हैं लीडरशिप को नीचे की तरफ के 50, 45, 55 ऐसे लोग हों जो लीडर बने। और माशाल्लाह उस सिलसिले में जो कि फलाई काम है वो भी हो रहे हैं। अभी हम आई कैम जो हमारे रहीम जानू साहब हैं माशाल्लाह, उनकी 3 लाख से ज़्यादा उन्होंने
सर्जरियाँ कराई हैं या उन्होंने OPD करवाए हैं, जो वर्ल्ड में फैमिली ओल्ड सबसे बड़ा उनका आई कैंप है। तो ज़ाहिर है वो हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी इस सिलसिले में करते हैं। हमने अभी मेमो लीडरशिप फोरम ने एक हेल्थ कार्ड इशू किया है जो तकरीबन हर फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस देगा, उसमें OPD भी होगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी होंगे। तो मतलब ऐसे जो काम होते हैं फलाई वो भी करते हैं, लेकिन मेन पर्पस ऑफ मेमो लीडरशिप फोरम है कि हम उसमें लीडरशिप जो है वो नीचे लेके आए, मतलब लो एज के लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जब्बार राठौर साहब, कोई देखने वाले नाज़रीन को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि इंसान को सोचना चाहिए कि अगर इसके पास कोई भी आता है, कोई दोस्त यार रिश्तेदार, कोई मांगने वाला, तो आप खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि आपसे कोई लेने के लिए आ रहा है, तो उसको आप मैक्सिमम किस्म की हेल्प करें। नो डाउट आप उसको वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, और चाहे उसमें फ़कीर ही क्यों नहीं हो, उसको झड़के नहीं है। मुझ समेत मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जितने और भी लोग बैठे हैं, किसी को ना देना है तो ना दे, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ करे, हाँ ना करे। तो आप समझें कि खुश नसीब है कि आपसे कोई ले रहा है। उस हो सकता है उसमें ही कोई बंदा ऐसा आ जाए, कोई अल्लाह का वली आ जाए, कोई टेस्ट चेक के लिए आ जाए और आपकी इस हरकत से अल्लाह नाराज़ नहीं हो जाए। तो इसमें पेशेंस रखें, जो जितना आपसे हो सकता है लोगों के लिए, अपने से नीचे वालों के लिए करें। और बाकी एक ये है कि जो इंसान ऊपर जा रहा हो ना, तो उसका हाथ पकड़ें आप, उसको ऊपर चढ़ने से ना रोकें, क्योंकि उसको ये हैसियत अल्लाह ने दी है कि वो ऊपर जा रहा है, तो उसका हाथ पकड़ें तो वो ऊपर है। उसने ऊपर तो 100% जाना ही जाना है। अगर आपने उसकी टांग पकड़ी तो एक टांग पकड़े हुए दूसरी टांग मार के आपको नीचे फेंकेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि उधर तो अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसा ही है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। आज के दौर में ऊपर जाने वाले को रोका जाता है, देखा जाता है कि हमारी सीट नहीं चले जाए, हमारा मकाम नहीं चले जाए, हमारा रुतबा नहीं चले। ये सब दुनियावी बातें। कुदरत ने जिसको जो मकाम देना है वो देना ही है, दुनिया कितना भी रोक ले, कुछ भी कर ले। बेशक है, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। फ़हीम भाई, आपकी जानिब आऊँगा, कोई देखने वाले नाज़रीन को हमारे कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि एक दूसरे की मदद करें, अपने सराउंडिंग में देखें जो जो ज़रूरतमंद हैं। जवार भाई भी सही कह रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करें, जितना हो सके दें। अल्लाह पाक ने आपका देने वाला हाथ किया है, लेने वाला नहीं। तो जो मांगने आ रहा है उसको आप जस्टिफाई करें और उसको जितना हो सकता है आप उसकी मदद करें। शुक्रिया। सज्जाद सुमरो साहब, आपकी जानिब आऊँगा, कोई पैगाम? आप मेरा पैगाम अक्सर देता रहता हूँ। देखिए, आजकल आप, बल्कि ये चीज़ चली आ रही है आजकल कुछ ज़्यादा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो स्टेटस पे लोग नमाज और कुरानी आयत की जो मेमीज़ बनाते हैं, खुदारा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ के बारे में ज़रा, क्योंकि आपको पता है ईमान सल्ब हो जाता है इससे। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि वो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम अपनी बेख्याली के अंदर क्या चीज़ कर जाते हैं, जिससे जो ना हमें तजदीद ईमान फिर वापस करना पड़ता है। अल्लाह इनको हिदायत दे। दूसरा ये कि फ़हीम भाई को मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और अल्लाह पाक जो है वो इनके इस नए कारोबार में जो शुरू करे उसमें ढेरों सारी बरकत दे। और हमारे ड्रीम वर्ल्ड वाले जो बैठे हुए डायरेक्टर साहब, इनको भी अल्लाह सेहत दे, और जो आपके नात खाए। आपका माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फ़हीम बुटीक्स के और क्यू.एन फ्लेवर्स के गिफ्ट हम पर जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त लेने से कल प्रोग्राम में शामिल करेंगे हसन बिन खुर्शीद की खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम। जनाब हसन बिन खुर्शीद साहब। सल्ली अला नबील करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल करीम की पुरनूर सातों में आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं बज़्म सनाकर। तकरीबन पूरे महीने हम साथ रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसका एक सेगमेंट होता है नात के रंग शकीला परवीन के संग, जो आप बेहद पसंद कर रहे हैं। और इसमें नात ख़ानी की दुनिया से नए नाम भी आते हैं, पुराने नाम भी आते हैं, सीनियर जूनियर सभी को हम मदू फरमाते हैं। आज भी हमारे दरमियान बहुत सारे नात ख़्वाह मौजूद हैं और यकीनन आप उनसे नात सुन सकेंगे। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं पहली मेहमान शख्सियत, नात ख़्वानी की दुनिया में एक नया नाम है, सैयदा इशा सलीम साहिबा। खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? रमज़ानुल करीम कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह। आपसे चाहूँगी कि आपकी प्यारी आवाज़ में जो है हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो जाए। अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना,
अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना जब सवाने से खुर्शीद क़यामत आए जब सवाने से खुर्शीद क़यामत आए अपनी जुल्फों को सरेरा बिछाए रखना दरमियान सैयदा आयशा सलीम अपनी नात का नजराना पेश कर रही थी बहुत प्यारी आवाज़ में। अब मैं चाहूँगी मैं इकरा साहिबा से कि नात का नजराना पेश कीजिएगा। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवानुमा आज की रात है अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है फिर ये आएगी शब किस को मालूम है हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है मोमिनो आज गंजे सका लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो बाबे रहमत खुला आज की रात है। सुभान अल्लाह इक़रा साहिबा जो है नात का नजराना पेश करी थी अपनी प्यारी आवाज़ में। और वैसे भी हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याकार हैं। रब करीम इस रमज़ानुल करीम के मौके पर हम सबको मुआफ़ अता फरमाए। मैं मुल्तमिस हूँ आसिफ रज़ा क़ादरी साहब से कि आप नजराने अक़ीदत अपनी प्यारी आवाज़ में पेश कीजिए। क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है
کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ کیا کہنے مدینے کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں ساری آپ بھی کوئی مدینے کا ذکر اپنی آواز میں کیجیے۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں، اور وہ دن بھی تو آئے گا وہ راتیں بھی آئیں گی، وہ راتیں بھی آئیں گی، کہ دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں۔ کہتے ہیں کہ جو دن رات مدینے کی تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مدینے سے کم یہ محفل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میں اختتام کی طرف جانب بڑھوں گی اور آپ سب مہمان گرامی کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ شکیلہ پروین کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر فرما ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جاتے جاتے مجھے بھی مدینے کا ذکر کرنے کا دل چاہ رہا تھا، میں بھی پیش کر دیتی ہوں۔ میرے کملی والے کی شان ہے نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہے نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔